Hello friends, welcome to Learnology. Today's topic of our discussion is another very important gland, pancreas. इसी चैनल पे मैंने और भी वीडियोस कवर किए हैं एंडोक्राइनोलॉजी के. This is a third video of endocrinology. First video is introductory portion, second is a very important gland, adrenal gland, and third is pancreas. As you all know, the another name of pancreas is heterocrine gland or mixed gland. Heterocrine gland और mixed gland pancreas को क्यों बोलते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है. क्यों, और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं लेकिन हम उन्हें मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते हैं. पेनक्रियाज ही एक अकेली ऐसी ग्लैंड है जिसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं. वाई? बिकॉज पेनक्रियाज हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट. What actually exocrine part means? It secretes enzyme which helps in digestion, and definitely there is a duct-like structure in which these enzymes are stored. As written, duct gland. Next is endocrine part. Endocrine part means it secretes hormones, and ductless gland means no any duct is there to store something. As a ductless gland, it has a special group of hormone secreting cells called islet of Langerhans. Pancreas is a ductless gland. अगर हम उसके endocrine portion की बात करते हैं तो उसमें कुछ special groups of hormone secreting cells present होती हैं. उस special group को हम क्या बोलते हैं? Islet of Langerhans. It is written islet of Langerhans. इसमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं. फर्स्ट इज अल्फा सेल्स विच सेक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ग्लूकेगॉन. सेकेंड बीटा सेल्स इंसुलिन. डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन. नेक्स्ट, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पैनक्रियाज इन अवर बॉडी? इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक across the back of abdomen. And if we talk about the size of a pancreas, about 6 inches long and flat. The very first hormone from pancreas is insulin. What actually insulin works? As you all know, insulin lowers blood glucose level in the blood. यानी इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है यानी लोअर करता है. डेफिनेटली एक्सेस ग्लूकोज जो ब्लड में प्रेजेंट होता होगा वो उसका स्टिमुलेशन होता होगा, वो स्टिमुलेट करता होगा कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ब्लड में, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए. एंड जो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज का या एक्सेस ग्लूकोज का, वो ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म है. एंड वो कहाँ पर स्टोर्ड होगा? इन लिवर एंड मसल्स. This conversion is called glycogenolysis. Rather to say, this process is called glycogenolysis. Next, a very important hormone which is secreted by alpha cells, that is glucagon. Glucagon, what actually glucagon works? It इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल. यानी ब्लड का जब ग्लूकोज लेवल काफ़ी डाउन चला जाता है तो ग्लूकागॉन वर्क करता है एंड वो क्या करता है? ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देता है. ग्लाइकोजन विच इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म इन लिवर स्टिमुलेट्स टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज. दिस प्रोसेस, और यू कैन से दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलिसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. Pancreas, as I previously told, pancreas is both a duct gland as well as ductless gland. It means pancreas have both endocrine and exocrine portion. That's why pancreas is also called heterocrine gland or mixed gland. As a duct, its secretion pancreatic juice is poured into duodenum for digestion. As a ductless gland, it has a special group of hormone secreting cells called islet of Langerhans which are scattered in the entire gland. Little island, the islet produce 3 hormones, insulin, glucagon, somatostatin, from different kinds of cells. अल्फा से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? अल्फा सेल से, दैट इज ग्लूकागॉन. बीटा सेल से इंसुलिन. इससे आप
याद कर सकते हो, देयर इज़ अ ट्रिक, आपने वो तो सॉन्ग सुना होगा ना, बिन तेरे, तो बिन से आप याद रख सकते हो बीटा सेल्स, इंसुलिन। नेक्स्ट इज योर सोमैटोस्टैटिन। दिस इज अ सेक्शन ऑफ पैनक्रियास टिश्यू। इसमें आपको एंजाइम सेक्रेटिंग सेल्स भी दिख रही होंगी एंड हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स भी दिख रही होंगी। Next, insulin secreted by the beta cells check rise of sugar level in the blood. This it does in two principal ways. क्या करता है, rise of sugar in blood में उसका level check करता है. It promotes glucose utilization by the body cells, thereby reducing the blood sugar level. Definitely. It stimulates deposition of extra glucose of the blood as glycogen in liver and muscles. यानी डिपोजिशन करता है किसका, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसके जस्ट पहले हमने एक फ्लो चार्ट से भी समझा, या सिंपली आप बोल सकते हो एक लाइंस में अच्छे से बनाया हुआ था। दैट इज़ व्हाट योर एक्स्ट्रा ग्लूकोज का जो डिपोजिशन हो रहा था वो ग्लाइकोजन में, लीवर एंड मसल्स में हो रहा था। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट अंडर सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन का जो सेक्रीशन है वो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में होगा तो क्या होगा, देखिए। इनसफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड hyperglycemia. The word mellitus means honey, as you all know, referring to the passes of sugar glucose in urine. डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन में शुगर भी पास होता है। अ डायबिटिक पर्सन, कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ गिवन है कि एक डायबिटिक पर्सन में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, बिल्कुल शुगर का जो कंसनट्रेशन होगा ब्लड में वो काफ़ी हाई होगा। एक्सक्रीट अ ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोडेड विद शुगर, यानी जो यूरिन रिलीज़ होगा बॉडी से उसमें शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोड होगा। फील थर्स्टी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू टू मच यूरिनेशन। लूजेज वेट, वेट भी काफ़ी कम होगा एंड पर्सन काफ़ी वीक हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवर सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अगर बहुत ज़्यादा सेक्रीशन हो गया देन क्या होगा। शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ लोवर्ड, बिल्कुल शुगर लेवल काफ़ी डाउन चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन्स बिलो, हाइपो मीन्स बिलो एंड हाइपर मीन्स हाई। ब्रेन में एंटर स्टेट ऑफ कोमा इफ द लेवल बिकम्स टू लो इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए भी अगर काफ़ी डाउन चला जाएगा किसका, इंसुलिन का लेवल, तो पर्सन क्या हो जाएगा, कोमा में जा सकता है। नेक्स्ट, A similar thing may happen to a diabetic patient if an overdose of insulin is given. अगर overdose दे दी जाती है इंसुलिन की by mistake, the patient may become unconscious. थोड़े टाइम के लिए वो unconscious जैसा फील करता है। This is what called insulin shock or hypoglycemia, and a prompt bite of sweet biscuits or sugar candy is helpful. Next is your glucagon. As I told previously, glucagon is secreted from alpha cells of pancreas. It stimulates the breakdown of glycogen into the liver to glucose. Thus, it raises sugar level in blood. Next, there is a very important table is there, hormones of isolate of Langerhans. Isolate of Langerhans के कुछ important हॉर्मोन्स हैं। इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा। एक्सेस होगा तो नर्व सेल स्टारवेशन एंड ब्रेन में कोमा। एंड ग्लूकेगॉन की बात करेंगे तो वो अल्फा सेल से रिलीज होगा, वो स्टिमुलेट क्या करता है, लीवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। सोमैटोस्टैटिन वैसे तो डेल्टा सेल से निकलता है, ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। ये सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th ICSE बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट याद रखिएगा सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम डेल्टा सेल्स इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट diagram to understand the functioning of insulin and glucagon. So let's get started. अगर ब्लड का शुगर लेवल लो होगा तो कौन सी सेल्स एक्टिवेट होंगी, पैनक्रियास की अल्फा सेल्स एक्टिवेट होंगी। एंड आपको पता है अल्फा सेल से क्या रिलीज हो रहा था, ग्लूकेगॉन। अगर ये देखिए अल्फा सेल से क्या रिलीज हो रहा था, ग्लूकेगॉन। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन, अल्फा सेल्स अगर एक्टिवेट होंगी तो ग्लूकेगॉन रिलीज होंगी एंड रिलीज होगा। ग्लूकेगॉन का क्या फंक्शन था, वो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में कर रहा था एंड ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाएगा तो जो ब्लड में शुगर का लेवल काफ़ी कम था वो ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा एंड शुगर का लेवल मेंटेन हो जाएगा।
ठीक है, रेजेस ब्लड शुगर लेवल। व्हाट अबाउट अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, हाई ब्लड शुगर, अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है देन क्या होना है, कौन सी सेल एक्टिवेट होंगी, दैट इज बीटा सेल। पैनक्रियास की बीटा सेल्स एक्टिवेट होंगी और इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा। वो क्या करेगा, इंसुलिन क्या किस पर एक्ट करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है एंड शुगर का लेवल लो कर देगा। इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज go through with this diagram, very important. This is all about today's lecture guys. I will try my best. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. And please ऑर्पी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड एंडोक्राइनोलॉजी का मैंने इंट्रोडक्शन इसी चैनल पे कवर किया है, उसे भी डेफिनेटली देखिएगा। बिकॉज आप चीज़ें कॉन्टिन्यूएशन में देखते हो तो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। Thank you everyone, and please join the Telegram channel. The link of Telegram channel is given in the description box. Thank you everyone.